नमस्ते दोस्तों, गुनगुन कुमारे हियर और आज हम बात करेंगे नारुतो एनिमे के सबसे बेहतरीन शिनोबी के बारे में। यह सवाल बहुत टाइम से फैंस के दिमाग में घूम रहा है और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे अपने अंदाज में। कौन है सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा बैडएस? नारुतो, सास्के या कोई और? I don't ever slow up, no I don't take shit, got no love for the fakeness. If you wanna play tough, you wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, knock the roast, knock the gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gotta learn the consequence, I'm being incompetent. Mental health is confidence, screams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible. नहीं। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे दूसरे कंटेंडर की, जो है हमारा अपना सास्के उचिहा। अब ये है एकदम बैडएस शिनोबी, जिसके लिए कूल शब्द ही बना है। शुरू से ही जीनियस, पूरे उचिहा क्लैन का प्राइड, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। क्यों? क्योंकि इसके भाई इटाची ने पूरे क्लैन को ही खत्म कर दिया था और छोड़ा सिर्फ सास्के को, ताकि ये बड़ा होकर उसे चैलेंज कर सके। मतलब फैमिली ड्रामा भी कितना ज्यादा है यार। खैर, सास्के ने भी अपने भाई से बदला लेने के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। ओरोचिमारू जैसे सांप से भी ट्रेनिंग ली, नए नए जुत्सु सीखे और अपनी शेरिंगन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया। लेकिन जैसे जैसे सास्के ताकतवर होता गया, वैसे वैसे ये अंधेरे में भी डूबता गया। अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया, अपने गांव को पीछे छोड़ दिया, सिर्फ बदला के लिए जीने लगा। लेकिन नारुतो ने कभी सास्के की उम्मीद नहीं छोड़ी और आखिरकार नारुतो की दोस्ती और समझाने का असर सास्के पर भी हुआ। सास्के को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने फिर से अपने दोस्तों और गांव का साथ दिया। सास्के की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इंटेलिजेंस और पावर। ये बहुत ही स्किल्ड शिनोबी है और इसके जुत्सु भी बहुत ही घातक है। लेकिन साथ ही सास्के हमें यह भी सिखाता है कि गुस्सा और नफरत हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। हमें हमेशा अपने दोस्तों और अपनों का साथ देना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा कंटेंडर, सास्के उचिहा। अब बारी है तीसरे कंटेंडर की, जो है एकदम लेजेंडरी शिनोबी। देखते हैं कि क्या वो नारुतो और सास्के को टक्कर दे पाएगा या नहीं। चैप्टर 3। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे तीसरे कंटेंडर की, जो है हमारा अपना काकाशी हताके। ये है एकदम मिस्टीरियस और बैडएस शिनोबी, जिसे कॉपी निंजा काकाशी और शेरिंगन नो काकाशी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास है शेरिंगन, जिससे ये अपने ओपोनेंट के जुत्सु को कॉपी कर सकता है। लेकिन काकाशी की जिंदगी भी बहुत ही दर्दनाक रही है। इसने अपने पिता को खो दिया,
अपने दोस्त ओबीटो को खो दिया और फिर अपनी प्यारी स्टूडेंट रिन को भी खो दिया। मतलब जिंदगी ने इसके साथ भी बहुत बुरा किया है यार। लेकिन इन सब के बावजूद ककाशी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। ये हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए मौजूद रहा, उन्हें सही रास्ता दिखाता रहा और उन्हें एक बेहतर शिनोबी बनने में मदद करता रहा। ककाशी हमें सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बनाते रहना चाहिए। ककाशी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और शेयरिंगन। ये बहुत ही स्किल्ड शिनोबी है और इसके पास जुत्सु का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो दोस्तों, ये था हमारा तीसरा कंटेंडर ककाशी हतके। अब बारी है चौथे कंटेंडर की, जो है एकदम ट्रैजिक हीरो। देखते हैं कि क्या वो नारुतो, सास्के और ककाशी को टक्कर दे पाएगा या नहीं। चैप्टर 4। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे चौथे कंटेंडर की, जो है हमारा अपना इटाची उचिहा। अब यह है एकदम कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जिसे समझना आसान नहीं है। शुरू में तो यह हमें विलन लगता है जो अपने ही क्लैन को मार देता है, लेकिन जैसे जैसे हमें इटाची के पास्ट के बारे में पता चलता है, वैसे वैसे हम समझ पाते हैं कि इसने ये सब क्यों किया। इसने अपने क्लैन को नहीं बल्कि अपने गांव को बचाने के लिए यह कदम उठाया था। इटाची को अपने गांव से बहुत प्यार था और वो नहीं चाहता था कि उसके क्लैन की वजह से गांव में कोई जंग हो। इसलिए उसने यह दर्दनाक फैसला लिया और अपने ही भाई को छोड़कर सबको मार डाला। इटाची हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमें बड़े भलाई के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। हमें हमेशा सही और गलत में फर्क करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। इटाची की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इंटेलिजेंस, पावर और इसका गांव के लिए प्यार। यह बहुत ही स्किल्ड शिनोबी था और इसके जुत्सु भी बहुत ही घातक थे। तो दोस्तों, यह था हमारा चौथा कंटेंडर इटाची उचिहा। अब बारी है हमारे आखिरी कंटेंडर की, जो है एकदम लेजेंडरी लीडर। देखते हैं कि क्या वो बाकी सभी कंटेंडर्स को टक्कर दे पाएगा या नहीं। चैप्टर 5। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे आखिरी कंटेंडर की, जो है हमारा अपना जिराया। ये है एकदम परवर्टेड सेज जो अपनी नोज ब्लीड्स और पीपिंग हैबिट्स के लिए फेमस है, लेकिन साथ ही ये एकदम पावरफुल और रिस्पेक्टेड शिनोबी भी है, जिसे टोड सेज के नाम से जाना जाता है। जिराया ने नारुतो को ट्रेन किया, उसे जिंदगी जीने का तरीका सिखाया और उसे एक बेहतर शिनोबी बनने में मदद की। जिराया हमेशा नारुतो के लिए एक फादर फिगर रहा और उसने हमेशा नारुतो का साथ दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। जिराया हमें सिखाता है कि जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। हमें हमेशा अपने स्टूडेंट्स और अपनों का साथ देना चाहिए और उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। जिराया की सबसे बड़ी ताकत है इसकी पावर, विजडम और इसके स्टूडेंट्स के लिए प्यार। ये बहुत ही स्किल्ड शिनोबी था और इसके जुत्सु भी बहुत ही घातक थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे पांचों कंटेंडर्स। अब आपको ही डिसाइड करना है कि इनमें से कौन है नारुतो एनिमे का सबसे बेहतरीन शिनोबी। कमेंट में जरूर बताना कि आपका फेवरेट शिनोबी कौन है और क्यों। तो दोस्तों, ये थे नारुतो एनिमे के सबसे बेहतरीन शिनोबी। मुश्किल है ना डिसाइड करना कि कौन है सबसे बेहतरीन। सभी ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। नारुतो अपने डिटर्मिनेशन के लिए, सास्के अपनी पावर के लिए, काकाशी अपनी इंटेलिजेंस के लिए, इताची अपने सैक्रिफाइस के लिए और जिराया अपनी विजडम के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि इन सभी कैरेक्टर्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। दोस्ती की अहमियत, प्यार की अहमियत और कभी हार न मानने की अहमियत। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपका फेवरेट शिनोबी कौन है और क्यों।